Morning to all my dear students. Today we are back with science class. Students, in previous video we have learned the characteristics of birds. So now let's recall the characteristics of bird. Birds are the animals with their bodies covered with feathers. They have a pair of wings and a pair of legs and claws. They do not have teeth, but they have a beak instead. That's mean they are taking their food using their beak, and you know that the shape, size and function of beak, it largely depend upon their food habits. So that's mean different birds have different type of beaks. So let us try to understand it with the help of an example. For example, I want to eat pasta. I will use fork. If I am eating noodle, I will use chopstick. If I am eating rice, I will use spoon. That's mean for eating different type of food, I need different type of cutlery. Similarly, birds also eat different type of food, so they need different type of beak. So let us take up of today's topic, that is different type of beaks based on their feeding habits. This is our today's topic, different type of beaks based on their feeding habits. First is strong and pointed beak. Strong and pointed beak is used to peck at the bark of trees, to eat insects and make hole in the tree trunk. यानी कि ट्री ट्रंक के अंदर होल बनाने के लिए, इंसेक्ट को ईट करने के लिए जो कौन सी बर्ड की कौन सी बीक का यूज़ होता है, स्ट्रॉन्ग एंड पॉइंटेड बीक का यूज़ होता है. दैट इज़ अ फॉर एग्जांपल वुड पैकर. क्योंकि वुड पैकर की जो बीक होती है वो कैसे होती है, स्ट्रॉन्ग और पॉइंटेड होती है. क्योंकि वो क्या करते हैं, इससे ट्री ट्रंक के अंदर होल बना के अपना वो नेस्ट बनाते हैं. इसके अलावा जो इंसेक्ट हैं उनको ईट करने के लिए वो इसका यूज़ करते हैं. देन सेकेंड इज शॉर्ट एंड हार्ड बीक. शॉर्ट एंड हार्ड बीक का फॉर एग्जांपल स्पैरो, पिजन एंड हैन, दे हैव short and hard beak. These beaks are used in the bird that crush the seeds and eat the seeds and grain easily. यानी कि जो क्रश जिसका यूज़ जो स्पैरो, पिजन और हैन है, वो सीड्स को क्रश करके उसको ईट करने के अंदर, ग्रेन्स को क्रश करके उसको ईट करने के अंदर उसका यूज़ करते हैं अपनी जो स्ट्रॉन्ग एंड हार्ड बीक का है. तो कौन कौन से बर्ड्स होते हैं जिनकी शॉर्ट एंड हार्ड बीक होती है, स्पैरो, पिजन एंड हैन. देन नेक्स्ट इज short, hard and curved beak. Parrot have short, hard and curved beak. It is used by the parrot to crack the nuts, seeds and eat pulp of hard and unripe fruit. Unripe mean जो पके हुए फल नहीं होते, राइप फ्रूट नहीं होते, अनराइप होते हैं. वो क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा हार्ड होते हैं. तो आपने देखा होगा जो पैरेट्स हैं उनको वो ईट करते हैं. तो उनको ईट करने के लिए उसको, क्योंकि वो हार्ड होते हैं, तो उसको कैसी बीक चाहिए, उसकी शॉर्ट, हार्ड और कर्वर्ड. कर्वर्ड में मुड़ी हुई. देखिए जैसे कि पिक्चर के अंदर उसकी जो बीक है वो कैसी है, कर्वर्ड है. और वैसे कैसी होती है, हार्ड होती है. क्योंकि इसका यूज़ वो नट्स को क्रैक करने के अंदर, सीड्स और को ईट करने में, और पल्प ऑफ हार्ड एंड अनराइप फ्रूट्स को ईट करने के अंदर वो इसका यूज़ करता है. द नेक्स्ट इज ब्रॉड एंड फ्लैट बीक टू कैच फिशेस एंड वीड्स इन वाटर. अब डक्स एंड स्वैन
जो वाटर एनिमल्स हैं दे हैव मोस्टली ब्रॉड एंड फ्लैट बीक because they use it to catch the fishes and birds in water. Then next is strong, sharp and hooked beak. You know that eagle, vulture and owl are scavengers. They eat dead plants and animals, so they have strong, sharp and hooked beak. These beaks are found in the birds that tear the flesh of other animals. तो जो एनिमल्स हैं, कौन से एनिमल्स की ये ऐसी वीक होती है जो क्या करते हैं, दूसरे एनिमल्स जो हैं उनको उनकी फ्लैश को टीयर करते हैं. जैसे वल्चर है, ईगल है, आउल है, हुक है, तो ये सारे क्या हैं, उनकी जो वीक होती है वो कैसी होती है, स्ट्रॉन्ग एंड शार्प और हुक वीक होती है. देन now we will read feet and claws of birds. The birds have different type of feet depending on the place where they live. जैसे बच्चों जो बर्ड्स होते हैं उनकी जो फूड है, उनकी जो वीक है वो उनकी फूड हैबिट से डिपेंड करती है. वैसे ही जो उनके फीट और क्लास हैं उनकी जो शेप है वो किस पे डिपेंड करती है, ऑन द प्लेस वेयर दे लिव. जहाँ पे वो रहते हैं उस प्लेस के ऊपर वो उनकी जो फीट है उनकी जो डिफरेंट टाइप्स हैं फीट्स के वो उस पर डिपेंड करते हैं. तो फॉर एग्जाम्पल बर्ड्स दैट सिट ऑन द ब्रांचेस ऑफ ट्री सच एज क्रो एंड स्पैरो हैव फीट दैट हेल्प देम टू होल्ड द ब्रांच टाइटली. जो बर्ड्स जो ब्रांचेस ऑफ ट्रीज यानी कि ट्रीज की जो ब्रांचेस पर बैठते हैं, जैसे कि क्रो है, स्पैरो है, उनके जो फीट्स होते हैं वो उनकी जो ब्रांच है उसको होल्ड करने के अंदर यानी कि पकड़ने के अंदर उनकी हेल्प करते हैं. जैसे आपने कभी क्रो और स्पैरो को बैठे हुए देखा होगा तो उनके जो पंजे हैं, उनके जो क्लॉज हैं, फीट्स हैं, वो उनको ब्रांच को होल्ड करके पकड़ के रखते हैं. देयर फीट हैव 4 टोज और उनके जो फीट्स होते हैं उनके अंदर कितने टोज होते हैं, 4 टोज होते हैं. इन सम बर्ड्स लाइक स्पैरो 3 टोज आर इन फ्रंट एंड 1 एट द बैक. और जैसे स्पैरो है उसके जो टोज होते हैं, उसके जो फीट होते हैं उसके अंदर जो टोज होते हैं, टोज में जो उसकी फिंगर्स होती हैं पैरों की, उनमें जो 3 टोज होती हैं वो कहाँ होती है, फ्रंट के अंदर होती है और 1 एट द बैक, और एक कहाँ होती है, बैक के अंदर होती है. A woodpecker's foot has 4 claws. जो woodpecker है, this is the feet of woodpecker. So how many claws in woodpecker feet? There are 4 claws. तो woodpecker foot has 4 claws. 2 facing forward and 2 facing backward. उसमें जो 2 होते हैं वो क्या होते हैं, फॉरवर्ड है, और 2 क्या होते हैं, बैकवर्ड होते हैं. तो 2 फेसिंग फॉरवर्ड एंड 2 फेसिंग बैकवर्ड. तो हमने क्या रीड किया इसमें कि जो कुछ बर्ड्स होते हैं उनकी जो जैसे स्पैरो है या क्रो है, उनके जो फीट्स हैं वो उनकी ब्रांच को होल्ड करने के अंदर हेल्प करते हैं. इसके अलावा उनके कितने देर फीट है, 4 टोज, और उनके फीट्स के अंदर कितनी टोज होती हैं, 4 टोज होती हैं. 3 टोज आर इन द फ्रंट एंड 1 एट द बैक. और जो वुडपेकर है उसके कितनी क्लास होती हैं, फुट के अंदर 4 क्लास होती हैं. 2 फेसिंग फॉरवर्ड एंड 2 फेसिंग बैकवर्ड. 2 आगे की तरफ और 2 पीछे की तरफ, जैसे कि पिक्चर के अंदर आपको दिखाया गया है. 2 फेसिंग फॉरवर्ड एंड 2 फेसिंग बैकवर्ड. सो नाउ लेट्स रीड अगेन द नेक्स्ट पार्ट. बर्ड्स दैट स्विम इन वाटर हैव वेब्ड फीट. और जो बर्ड्स वाटर के अंदर स्विम करते हैं उनके जो फीट्स होते हैं वो कैसे होते हैं, वेब्ड होते हैं. The 3 front toes are joined by a membranes. Membranes mean layer. The 3 front toes are joined by a membranes. अब देखिए ये जो webbed feet है उसके अंदर जो 3 toes हैं वो किससे जुड़े हुए हैं, membranes से, यानी कि जो बीच की लेयर है उससे वो जुड़े हुए हैं. Ducks and swans have this kind of feet. यानी कि जो वाटर एनिमल है जिसमें डक, स्वैम आते हैं, उनके जो फीट्स होते हैं वो कैसे होते हैं, दे हैव webbed feet. Birds of prey like eagle and owl have strong feet and hooked claws. जो birds of prey, जो birds of prey यानी कि जो शिकार करते हैं, like eagle है, owl है, उनके जो
फीट होते हैं वो कैसे होते हैं, स्ट्रॉन्ग होते हैं, और उनके जो हुक क्लोज होते हैं वो हुक की तरह मुड़े हुए होते हैं। जैसे देखिए हुक, इसमें देखिए हुक शेप उनके क्लोज हैं। ये देखिए इस पिक्चर में दिखाई दे रहा है ना, जैसे ये हुक हैं, हुक टाइप में होते हैं उनके क्लॉज। और उनके जो फीट होते हैं वो कैसे होते हैं, स्ट्रॉन्ग फीट होते हैं उनके। एंड सो दैट दे कैन होल्ड एनिमल ऑन विच दे फीड टाइटली, ताकि वो अपने जो उनका जो प्रे है, जिनको उन्होंने शिकार किया है, उसको वो टाइटली होल्ड कर सकें। इसीलिए उनके जो फीड होते हैं वो स्ट्रॉन्ग होते हैं और उसके हुक्ड शेप होते हैं, ताकि वो अपने पंजों के अंदर अपना जो शिकार है उसको वो कस सकें। तो इस तरह से तो जो बर्ड्स ऑफ प्रे लाइक ईगल एंड आउल हैव स्ट्रॉन्ग फीट एंड हुक्ड क्लॉज सो दैट दे कैन होल्ड द एनिमल ऑन विच दे फीड टाइटली। नाउ वी विल डू प्रैक्टिस जोन 3, fill in the blanks। अब fill in the blanks में फर्स्ट फिलअप इज ईगल हैव डैश क्लॉज। तो ईगल हैव डैश क्लॉज यानी कि व्हाट टाइप ऑफ क्लॉज ईगल हैव, तो ईगल्स हैव हुक्ड क्लॉक। हुक्ड, देखिए पिक्चर के अंदर भी कैसे क्लॉज हैं ईगल के, हुक्ड। तो आपने यहाँ पे हुक्ड के स्पेलिंग लिखने हैं, ईगल्स हैव हुक्ड क्लॉज, HOOKED, hooked claws। Then dash are toes are in front and one at the back। तो in sparrow 3 toes are in front and one at the back। कितनी toes आप फ्रंट में होती हैं, 3 toes। तो यहाँ पे आपने 3 के स्पेलिंग लिखने हैं, THREE, 3। Now third is vulture eats the dash of animal। As you know that vulture is a scavenger, so vulture eats the flesh of dead animals। तो आपने यहाँ पे लिखना है flesh। What is the spelling of flesh? FLESH, flesh। Vulture eats the flesh of animals। Then D, in a webbed feet 3 toes are joined by a, किससे ज्वाइन रहते हैं, एक लेयर के द्वारा, जिसको क्या बोलते हैं, वेब्ड फीट। किससे ज्वाइन रहते हैं, वेब्ड फीट में जो फ्रंट टोज होते हैं वो किससे ज्वाइन रहते हैं, मेम्ब्रेन से। तो राइट द स्पेलिंग ऑफ मेम्ब्रेन्स, MEMBRANE, मेम्ब्रेन। किससे ज्वाइन रहते हैं, मेम्ब्रेन से, MEMBRANE, मेम्ब्रेन। In a webbed feet 3 front toes are joined by the membrane। Then next is identify the types of weak of the following words। अब आपने यहाँ पे आपको कुछ वीक्स दिखाई दे रही हैं, आपने इनको आइडेंटिफाई करके नीचे लिखना है। तो फर्स्ट वीक कैसी है ये, फ्लैट एंड ब्रॉड एंड फ्लैट वीक। तो आपने इसको क्या लिखना है, ब्रॉड, BROAD, ब्रॉड एंड फ्लैट। तो किसकी होती है ये, डक एंड स्वैन हैव ब्रॉड एंड फ्लैट वीक। देन सेकंड, दिस इज अ वुडपेकर। तो वुडपेकर की जो वीक होती है वो कैसी होती है, स्ट्रॉन्ग एंड पॉइंटेड वीक। तो राइट द स्पेलिंग ऑफ स्ट्रॉन्ग एंड पॉइंटेड, स्ट्रॉन्ग एंड pointed। Do you know this bird? This is a parrot। तो parrot have short, hard and curved beak। कैसी beak होती है, short, hard and curved। तो write the spelling of SHORT, short, hard and कर्वर्ड वीक। कैसी होती है, शॉर्ट, हार्ड एंड कर्वर्ड वीक। दैट्स ऑल स्टूडेंट्स, टुडे योर होमवर्क इज दैट यू विल रीड पेज नंबर 71, 72 and you will do practice zone 3 in your discovering book। This is your today's homework। Okay, thanks for watching this video।